आप हीट कर दो या उसमें एसिड डाल दो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। Still this gas is passing directly to this conical flask. जितना और इसमें हम एक्सेल करेंगे उतना ये और मिल्की होगा। Mandatory question, mandatory. एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म only wick is not burning, something else is also burning. So हटाते हैं and let's and now check out the combustion क्यों नहीं हो रहा इसमें? Fuel भी है, oxygen भी है। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor, that is a path to lead you from the world of information to the world of knowledge, and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here to start the 5th chapter for class 7 science, that is changes around us, and we are going to finish off this chapter in one shot. Okay? Before we kick start, if you want notes of this chapter, you can join my Telegram channel. I'll share this whole PDF there. Link is given in the description. Got it? And yes, don't forget to subscribe the channel. And if you feel this video is worth watching, it is helpful for you, do like it and share it among your friends. Got it? Chalo. So let's get started with the chapter and first of all find out some changes around us. बेटा अपने आसपास नजर घुमा के देखो, you will see n number of changes. Continuously some other thing is changing, है ना? Out of these all, some of the changes are mentioned in your NCERT. So let's get started with those changes. ठीक है? Observe some changes. Here's the first one. I placed a cube of ice here half an hour ago. बेटा half an hour के लिए अगर ice cube को बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा? Melt हो जाएगी. So here melting of ice is happening. So change, isn't it? Next. A bud that I saw yesterday on this rose plant has become flower today. If you will see a bud on any plant, after 1 day or 2 days, it will turn into flower. So bud into flower, change, है ना? फिर से change. एक और देखते हैं. The bottle containing cold water is not cold anymore. If you will take out a water bottle from the fridge, it will be cold, है ना? The water will be cold inside. लेकिन after some time it won't be. वो थोड़ी देर में room temperature पे आ जाता है. So what is happening? Again change in the temperature of water. So change. Next one. Yesterday I saw some brown spots on banana, but today it has more brown spots and strong smell. बेटा जब हम बनाना मार्केट से लेके आते हैं, we try to get the yellowish one, जिसमें कम से कम brown spot हो, है ना? लेकिन अगर उसको 2 दिन तक नहीं खाओगे, then what you will see such condition and with some different kind of smell. So change. Yes. Now what you have to do? You don't have to just observe these changes. बेटा here you have to find out what is changing. यहाँ पर आइस मेल्ट हुई तो चेंज क्या हुआ? मेल्टिंग के प्रोसेस में चेंज क्या हुआ? यहाँ पे फ्लावर बर्ड से फ्लावर कन्वर्ट हुआ. देन व्हाट हैज चेंज्ड? यू हैव टू फाइंड आउट दैट. ठीक है? एंड फॉर दिस देयर इज वन टेबल गिवन इन एनसीईआरटी. यहाँ पे मैक्सिमम जो चेंजेस हमने लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी वाले ही हैं, 1-2 छोड़ के. ठीक है? चलो. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज चेंजिंग. द फर्स्ट वन, मेल्टिंग आइस. बेटा आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस जब मेल्ट होती है तो क्या होता है? इट कम्स इनटू लिक्विड फॉर्म. सो व्हाट इज हैपनिंग? सॉलिड टू लिक्विड, स्टेट चेंज. तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ वाटर का. यस. नेक्स्ट, चॉपिंग वेजिटेबल. लेट्स से पोटैटो. पोटैटो इज ऑलमोस्ट राउंड. अगर उसको पीसेस में कट कर दो तो फिर वो थोड़ा दूसरे शेप के आ जाता है, क्यूबॉइड या क्यूब. सो व्हाट चेंज इज देयर? शेप ऑफ पोटैटो, है ना? सो चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल में शेप चेंज होता है वेजिटेबल का बेसिकली. सो शेप. यस. नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर. सो वाटर liquid state, when you will boil it, it will convert into vapor. So what will happen? Liquid to vapor, liquid to gas. So again state change. So यहाँ पर भी state change होगा, isn't it? Next, making popcorn. बेटा popcorn, कॉर्न के जो दाने होते हैं बेसिकली, है ना, वो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पॉपकॉर्न बनता है then they turn into different shape and different texture, different size, है ना. उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है. So lots of changes happening while making popcorn, isn't it? और वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, है ना. जो पहले इनिशियल कॉर्न के दाने थे उससे बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. So here what happened? Here smell, yes, shape, size, in fact color also. So lots of change you can write down. Next, beetroot extract to water. बेटा बीटरूट एक्सट्रैक्ट. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट नाउ. सेकंड चैप्टर मैंने अच्छे समझाया था व्हाट इज एक्सट्रैक्ट. किसी भी चीज़ को अगर बॉईल करो पानी में तो जो कलर निकल के आता है वाटर में एंड यू स्ट्रेन इट, देन इट इज द एक्सट्रैक्ट. सो अगर बीटरूट एक्सट्रैक्ट को आप वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा? वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, है ना. जो वाटर पहले ट्रांसपेरेंट था वो बाद में फिर रेडिश कलर का हो जाएगा. सो हियर कलर, चेंज इन कलर. नेक्स्ट, बर्निंग वुड. बेटा वुड को अगर बर्न कर लोगे तो इट विल टर्न इनटू ऐश. यस.
A wood which is brown in color, ash is almost grayish black in color. Wood is very hard, but ash is soft. So what happened? Lots of property of wood will change, है ना. फिर जो ऐश बनने के बाद वो वुड वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं देगा. आप उस ऐश से दरवाजा नहीं बना सकते हो, उससे पेंसिल नहीं बना सकते हो. यस, सो हियर व्हाट यू कैन राइट, न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट, है ना. वी गॉट कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर वाइल बर्निंग द वुड. क्लियर. नेक्स्ट, ड्राइंग वेट क्लॉथ. बेटा वेट क्लॉथ थोड़े सैगी से होते हैं, जब ड्राई हो जाते हैं थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं, है ना. तो एक तो लुक चेंज होता है. बट वट इज हैपनिंग वाइल ड्राइंग द क्लॉथ? बेसिकली वाटर विच इज देयर इन द वेट क्लॉथ दैट इज इवेपोरेटिंग, है ना. तो बेसिकली लिक्विड जो है वो अपने, जो वाटर है वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेट चेंज होगा, है ना, स्टेट चेंज. और अगर हम क्लॉथ की बात करेंगे तो उसका लुक थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि अपीयरेंस चेंज होगा, है ना. सो नो नीड टू राइट दैट, वी कैन गो फॉर वाटर इटसेल्फ. नेक्स्ट, रोलिंग डो आटा, उसको आप रोल करके चपाती बना लो. तो क्या हो रहा है? आटा तो आटा ही है लेकिन शेप चेंज हो रहा है ना. सो शेप. नेक्स्ट, मेकिंग स्प्राउट्स. सो स्प्राउट्स किससे बनते हैं? पल्सेस से, होल ग्रेन पल्सेस से, होल पल्सेस से, है ना, नॉट द ग्राइंडेड वन. सो अगर आप सपोज मूंग दाल से आप स्प्राउट्स बना रहे हो तो मूंग दाल इज हार्ड, है ना, वेरी हार्ड, उसको च्यू नहीं कर सकते हो आप. यस, स्मॉल इन साइज. लेकिन जब आप स्प्राउट्स बनाते हो तो उसको सोक करना पड़ता है, तो इट स्वेल अप. सो साइज, चेंज इन साइज, फिर उसमें से स्प्राउट्स निकल के आते हैं. यस, सो चेंज इन शेप. सो साइज एंड शेप एंड स्मेल भी थोड़ा चेंज हो जाती है ना. सो शेप, साइज. यस, चलो नेक्स्ट, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो है, उसके आप छोटे छोटे गोले बना लो, बॉल्स बना लो. तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग? साइज इज चेंजिंग, साइज एंड शेप. यस, सो अगेन साइज एंड शेप. नेक्स्ट, कुकिंग वेजिटेबल. बेटा ऐसा कुछ लिखा है ना पहले, चॉपिंग वेजिटेबल. अर्लियर इट वॉज चॉपिंग वेजिटेबल, जहां पर शेप चेंज हुआ था. नाउ यू आर कुकिंग वेजिटेबल. बेटा अगर कुक कर लोगे वेजिटेबल को तो क्या होता है? उसका टेस्ट चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. पहले वो कच्चा जब था तब एडिबल उतना नहीं था, लेकिन आफ्टर कुकिंग इट इज नाउ एडिबल. यस, सो प्रॉपर्टी इज चेंजिंग. गॉट इट? सो हियर टेस्ट, टेक्सचर, है ना, and other properties are changing. We'll discuss them later on. Understood? So these are the type of changes that we observe while any change is happening. Clear? So let's reflect what we have observed till now. Beta here changes we observed were mainly in the change in shape, size, है ना, और क्या था? Color, smell, texture and other property of substance. Shape, size, color, smell, texture, ये तो समझ में आ गया. अदर प्रॉपर्टी मतलब बेटा जैसे वुड में था, वुड में क्या हुआ? प्रॉपर्टी ही पूरी चेंज हो गई. वुड विच इज हार्ड आफ्टर टर्निंग इनटू ऐश, नाउ इट इज नॉट हार्ड. सो प्रॉपर्टी, जो बेस प्रॉपर्टी है वुड की, सब्सटेंस की, वो पूरी चेंज हो गई क्योंकि नया सब्सटेंस आपको मिल गया, है ना. ऐसी कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, जब वेजिटेबल कच्चा था तो आपने उसको चॉप किया बट स्टिल इट इज रॉ, यू कांट ईट दैट. बट आफ्टर कुकिंग नाउ इट इज कुक्ड, सो यू कैन ईट. यस, सो प्रॉपर्टी चेंज हो गई वहां पर. अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज. नाउ हाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस ऑल चेंज? हमने ये सारे जो चेंज देखे वो ऑब्जर्व करे, वो कैसे करे? बाय आवर सेंसेस, है ना, देख के करे, स्मेल से करे, इजंट इट? देखो, वी ऑब्जर्व दीज चेंजेस अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस लाइक साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट. अंडरस्टूड? नाउ from here onwards we have to categorize these changes. देखो, let's categorize. And how can we categorize? Let's do it with the help of example. बेटा यहाँ पर these are the paper craft. पेपर होगा, पेपर को फोल्ड करके ये सब बन गया. And here paper was burnt. Got it? दोनों ही जगह पेपर यूज हुआ. Here also paper was used and here also paper was used. Clear? Now what happened? Let's say this is the square paper. इसको ही फोल्ड करके आपको ये सारे शेप अलग अलग मिल रहे हैं. ये अलग अलग पेपर से बने हैं ऑब्वियसली. इस वाले पेपर से मान लो ये वाला बना है, ठीक है. नाउ इस पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ वाले पेपर पे राइट कर सकते हो, इस पे भी तो कर सकते हो. सो वट एवर द प्रॉपर्टी दिस पेपर इज हैविंग, इवन आफ्टर चेंजिंग देयर शेप while making the craft, that property is still same. पेपर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो पेपर ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ एक्सेप्ट द शेप एंड साइज. Am I clear? यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पे हमने पेपर को पूरा बर्न कर दिया. अगर बर्न कर दिया तो अब ये बर्न करने के बाद ये वाला पार्ट जो बर्न हो रहा है ये पेपर है क्या? नो, इट इज एंटायरली न्यू सब्सटेंस. दिस इज एश.
विच इज नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी लाइक पेपर. इसमें और पेपर की प्रॉपर्टी में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है. अंडरस्टूड? सो चेंज तो दोनों ही जगह हुआ, बट here you got the new, here the substance remained the same and here object is not same. Understood? So change in appearance at both the places, but here the object is still same. Paper is still paper, but here the object is not same. You got something else. Am I clear? And now this type of change where object remains same, this is called physical change. और यहाँ पर जहाँ पर अपीयरेंस के साथ साथ पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया, आपको कुछ नई चीज मिल गई, यहाँ पर इसको बोला जाता है बेटा केमिकल चेंज. ठीक है? एंड नाउ वी विल गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल विद द फिजिकल चेंज. बेटा फिजिकल चेंज को समझने के लिए वी विल डू सम एक्टिविटीज एंड वी विल सी चेंज इन अपीयरेंस बट ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम. है ना? हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे हमको अपीयरेंस में तो चेंज दिखाई देगा लेकिन ऑब्जेक्ट वही रहेगा. ठीक है? एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज? द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद द पेपर. सो लेट मी आल्सो डू दिस. सो लेट्स से हियर इज द पेपर आई एम हैविंग. सो व्हाट इज द शेप? रेक्टेंगुलर. ठीक है? इसको फोल्ड करके मैंने कुछ और बना लेना है. सो लेट्स से नाउ इट इज सिलिंड्रिकल. व्हाट हैपेंड? Change in appearance because shape was changed, size is changed, but what about the object? बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी पेपर ही था, अभी सिलेंड्रिकल बना लिया तब भी तो पेपर ही है, कुछ नया ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला. यस, सो हियर चेंज इन अपीयरेंस बट ऑब्जेक्ट इज स्टिल सेम. गॉट इट? नेक्स्ट वाला देखते हैं. प्लेइंग विद अ बलून. बेटा बलून को इन्फ्लेट किया होगा आपने बहुत बार, फुलाते हैं बलून को, है ना? बलून फुलाने से क्या होता है? वो स्ट्रेच हो जाता है एंड इट बिकम्स बिग. साइज चेंजेस, शेप चेंजेस. ठीक है? बट इफ यू विल लूज द ग्रिप, अगर आप मान लो आप बलून फुला रहे हो और आपके हाथ से बलून छूट गया, आपने नहीं बांधा, तो क्या होगा? सारी गैस निकल जाएगी एंड यू विल अगेन गेट द ओरिजिनल शेप ऑलमोस्ट. है ना? तो यहाँ पर आपको शेप वापस मिल जाता है. लेकिन अगर आपने वही बलून को इन्फ्लेट किया और प्रिक कर दिया पिन से फोड़ दिया उसको, तो क्या होगा? the balloon will blast but you will not get the exact same shape. ठीक है? बट कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? बेटा शेप चेंज हुआ. बलून को प्रिक करने के बाद उसका शेप चेंज हो गया, वो फट गया, बट स्टिल बलून तो बलून ही है. उसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेच होना उसकी प्रॉपर्टी है. तो अगर वो फट गया तो उसके बाद भी तो वो स्ट्रेच होगा. यस, सो बलून इज स्टिल सेम. आपको कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं मिला उससे. गॉट इट? शेप उसका चेंज हो गया बिकॉज इट वॉज टॉर्न बट स्टिल इट इज बलून. एम आई क्लियर? आगे देखते हैं. वन मोर. क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक. बेटा चॉक जिससे आपकी मैम आपकी क्लास में लिखती हैं, है ना? अगर उस चॉक को आप क्रश कर दो तो क्या मिलेगा? पाउडर मिलेगा. है ना? यू विल गेट द पाउडर. नाउ यू कैन राइट विद द पीस ऑफ चॉक, लेकिन पाउडर से भी तो लिख सकते हैं. पाउडर भी तो वही व्हाइट कलर या जो भी कलर की चॉक हो वो देता है. कई बार आपने देखा भी होगा जब चॉक पाउडर गिरता है तो उसको हाथ में लगा के बच्चे ऐसे बोर्ड पे डिजाइन बनाते हैं. यस, सो स्टिल द प्रॉपर्टी इज सेम बट अपीयरेंस चेंज्ड. पहले जो चॉक थी वो एक स्टिक फॉर्म में थी, क्रश करने के बाद पाउडर फॉर्म में हो गया. शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, बट स्टिल इट इज chalk. Understood? So these all examples, what is happening here? All the activities change in appearance, but object is still same. Am I clear? So let's analyze what we have understood till now. In all these cases, all the activities, although we observe a change in the appearance, but no new substance was formed. कोई नया substance नहीं बना, substance वही था. Such changes in which only physical properties like shape, size, state of the substance changes are called physical changes. What is the definition of physical change? बेटा physical change और chemical change में difference आ सकता है तो वहाँ पर definition लिखनी पड़ेगी. When the change takes place only in the physical properties like shape, size and this state, that is called physical change. In physical change, no new substance is formed. Physical change में कोई नया substance नहीं मिलता, substance वही रहता है. Clear? फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. बेटा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं भी हो सकते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो ये पेपर था, स्क्वायर फॉर्म में था, सिलेंडर बनाया, सिलेंडर बना के शेप चेंज करा हमने, लेकिन वापस ओपन करके वापस आपको वही रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको पेपर मिल गया, रिवर्सिबल. लेकिन बलून को जब हमने प्रिक किया तो बलून फट गया, है ना? तो उसके बाद उसका शेप चेंज हुआ. नाउ यू कैन नॉट गेट द बलून बैक इन द ओरिजिनल शेप. आसानी से नहीं मिलेगा मतलब आपको, है ना? तो दैट इज इरिवर्सिबल.
Am I clear? चलो आगे समझेंगे. Now let's understand some of the chemical changes, and here again one activity, change in both appearance and object. Now जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे उससे हमें क्या दिखेगा? Change in both appearance as well as object will also change. ठीक है, क्या करना है इसमें देखो. Take 2 glass tumblers or small transparent bottles, mark them A and B. Now fill 1/4 of the glass tumbler A with the tap water. एक में आपको टैप वाटर डालना है और दूसरे में आपको डालना है लाइम वाटर. नाउ आई होप यू नो क्लियरली दैट व्हाट इज लाइम वाटर. बेटा सेकंड चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था मैंने उस टाइम पे भी, है ना. लाइम वाटर क्या है? ये चूने वाला पानी. ठीक है. नाउ ब्लो एयर into each glass tumbler and one at a time using separate straws and observe them. तो करके देख लेते हैं, है ना. आपको पता है सिर्फ पढ़ते नहीं हम यहाँ पे, हम करते हैं एक्टिविटी. सो these are the 2 glass. This one clearly visible tap water and this one lime water. Now we are going to blow air in each of them and we have to observe the changes. ठीक है, देखो. Let me take one straw and let me blow air in this. Okay. What do you observed? Bubbles were formed, but कोई दूसरा चेंज दिखा क्या? It is still water. कोई कलर चेंज नहीं, कोई टेक्सचर चेंज नहीं. यस, सो दिस इज विद द वाटर. नाउ लेट मी डू इट द सेम थिंग विद द लाइम वाटर. ठीक है. लेट मी डू इट वन मोर टाइम. लेट मी टेक द डीप ब्रेथ. बेटा मोर यू विल ब्लो, मोर यू विल एक्सेल गैस इन दिस वाटर, मोर इट विल टर्न मिल्की. ठीक है, जितना और इसमें हम एक्सेल करेंगे उतना ये और मिल्की होता रहेगा. आई होप यू कैन सी द चेंज, एविडेंट चेंज. यस. नाउ हियर नो चेंज. यहाँ पर हमने एयर ब्लो किया था, सिर्फ और सिर्फ बबल्स बने थे. यहाँ पर हमने एयर ब्लो किया तो क्या हुआ? लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की. अंडरस्टूड? सो दिस इज केमिकल चेंज. यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ था क्योंकि बबल्स बन रहे थे उस टाइम पे, है ना. लेकिन यहाँ पर बबल्स तो बने, लेकिन साथ में कुछ तो बना है अंदर जिससे कि ये पूरा वाटर मिल्की हो गया है. एंड वो क्या बना है, वी विल ऑब्जर्व दैट. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नाउ सो दिस इज द एक्टिविटी दिस बॉय इज डूइंग हियर व्हिच आई हैव शोन यू. नाउ व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? व्हाट वी ऑब्जर्व्ड? वी ऑब्जर्व्ड दैट blowing air into water created bubbles only and there is no change in the appearance of water. water की appearance में कुछ भी change नहीं मिला हमें, सिर्फ bubbles create हुए थे. ठीक है. what about in lime water? blowing air into lime water creates bubbles and turns the lime water milky or cloudy. lime water कैसा हो गया था? milky हो गया था या फिर cloudy हो गया था, ये बोलते हैं इसको. ठीक है. now one very important thing, बेटा if you will leave this mixture undisturbed for some time, let me leave it, you will see some white powder settling at the bottom of the glass. ठीक है. और अगर white powder नीचे settle हो रहा है इसका मतलब कुछ तो नया बना है. so some new substance has been formed here in this lime water. ठीक है. if we leave it for some time, a white substance settle at the bottom of the glass tumbler indicating something new has formed. ठीक है. अब वो new क्या बना है वो हमें find out करना है. ठीक है. सो नाउ लेट्स एनालाइज वट एवर वी हैव ऑब्जर्व. बेटा पहले हम एक बार लाइम वाटर को रिकॉल करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है. रिकॉल व्हाट इज लाइम वाटर. लाइम वाटर किससे बनता है? लाइम वाटर बनता है चूने से. चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना. ये फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का. इट इज कैल्शियम ऑक्साइड. अब चूने में जब हम पानी मिलाते हैं यानी H2O को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. वाटर इज हाइड्रा, तो वाटर मिला लिया तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कहीं पर भी अगर हाइड्रो ऑक्साइड वर्ड है तो वहां पर OH, O कैपिटल H कैपिटल, ये पक्का फॉर्मूले में आता है. दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है. अब आपको मिला कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड तो CaOH होल ट्वाइस. अब ये होल ट्वाइस क्यों है, क्या है, डन ऑफ योर बिजनेस, वो छोड़ दो. बस ये याद रखो कि हाइड्रो ऑक्साइड इज OH. अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं लिखना है. बट वाई आई एम टेलिंग यू हियर, आगे आपको रिएक्शंस सारे की जितने हम समझनी है सब समझ में आ जाएंगे अगर आप इन छोटे छोटे फॉर्मूलेस को देख लो. ठीक है. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अंडरस्टूड? नाउ बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं. अब इस लाइम वाटर में आपने एक्सहेल किया
तो एक्सहेल में हम ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन्स देयर इज सम रिएक्शन बिटवीन दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. गॉट इट? देखो क्या रिएक्शन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द वन दैट इज लाइम वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. बेटा क्या था हमारा फॉर्मूला? CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स यू कैल्शियम. अब कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3. कुछ भी कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट हो, इसका मतलब उसके फॉर्मूला CO3 आना है. ठीक है, अगेन कितने आने हैं वो नहीं देखना आपको, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3. ये कार्बोनेट आगे जाके बहुत काम आएगा बेटा, ये CO3. ठीक है, और प्लस क्या बना आपका? वाटर. गॉट इट? और अभी से एक बात याद रख लो, whenever CO2 reacts with any hydroxide, mostly it forms carbonate only. ठीक है, and this calcium carbonate is the white powder. Yes, it is white in color and it is insoluble. It is insoluble in this mixture water. ये जो यहाँ पर बना ना, यहाँ पर एक्चुअल में ये पूरा व्हाइट जो दिख रहा है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट ओनली. और अभी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये पूरा घूम रहा है वाटर में, उसको हमने स्टिर कर रखा है ना, इट इज नॉट सेटल्ड येट, सो वो घूम रहा है. दैट्स वाई इट इज टर्निंग दिस सॉल्यूशन मिल्की. और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या होगा? सारा का सारा जो अनडिजॉल्व्ड दिस कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो सारा सेटल हो जाएगा नीचे. Am I clear? So this is the reaction that took place while we exhaled CO2 in this lime water. Am I clear? आगे देखते हैं. CO2 from the air you breathe out यानी exhale reacts with lime water and forms a new white colored insoluble substance that is calcium carbonate along with water. Clear? Due to this insoluble white colored substance, the liquid in the bottle appears milky. This is mandatory question. Mandatory. एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में, कंसेप्चुअल फॉर्म में कुछ घुमा के कहानी बना के ये क्वेश्चन पक्का आना है. Why water turns milky? Why lime water turns milky? ठीक है, why lime water turns milky? Due to the formation of an insoluble substance that is calcium carbonate. ठीक है, और हो सकता है आपको रिएक्शन भी बतानी पड़ेगी. Got it? So pay attention. Now this formation of a new substance indicates a chemical change. और यहाँ पर क्योंकि आपका एक नया सब्सटेंस बन गया, अब ये जो लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH होल ट्वाइस था, अब वो CaOH होल ट्वाइस नहीं है, अब वो CaCO3 बन गया है, नया सब्सटेंस में टर्न हो गया है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ. Am I clear? Understood? चलो आगे चलते हैं. Now activity 2, there is one more activity you have to perform. So what you have to do? Take a teaspoon of vinegar. विनेगर तो पता है, पता होगा, अब तो पता ही है, एसिड बेस पढ़ लिया है ना, सिरका. सो टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देखो फॉर्मूला क्या होगा, बता, कोई बना सकता है इसका फॉर्मूला? इफ यू नो इट्स फॉर्मूला नाउ डू कमेंट विद द टाइम स्टैम्प. बेटा मैंने कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बताया था? CO3. इसके फॉर्मूले में CO3 आना है. ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला होता है सोडियम इज Na, हाइड्रोजन इज H and carbonate is CO3. This is the formula of sodium hydrogen carbonate. ठीक है, छोटी सी चीज़ है बेटा कार्बोनेट, अगर उसको समझ लोगे तो कितना आसान से हमको फॉर्मूला पता पड़ जाता है. ठीक है, चलो. Now you would hear a fizzing, bubbling sound and see the gas bubble forming. Pass this gas through the freshly prepared lime water. Keep it in the another test tube and show as shown in the figure. ये आपका भाई इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है. अब करके देख लेते हैं, है ना. इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था. लेट्स हैव अ लुक हियर. ओके, आई हैव टू रिमूव दिस. वेट. सो चलो अब स्टार्ट करें. यहाँ पे देखो इनिशियली व्हाट हैपेंड, दिस इज द लाइम वाटर एंड हियर दिस इज द एम्प्टी ग्लास टम्बलर एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पोर विनेगर इन इट. ठीक है, और ये है आपका डिलीवरी ट्यूब और 2 रबर कॉर्क जिससे कि गैस एस्केप नहीं हो सकती. नाउ सो हियर आई एम गोइंग टू टेक दिस विनेगर, पोर दिस विनेगर इन दिस conical flask. Now in this conical flask we are going to add some baking soda. Baking soda डाल के देखते हैं क्या होता है, देखते हैं. This effervescence, इसको effervescence बोलते हैं. Fizzing sound है ना, बहुत ज़्यादा fizzing sound आती है, देखा होगा पक्का आपने. Now with the help of delivery tube what I am doing, जो भी ये गैस बबल प्रोड्यूस हुए, yes, ये सारे के सारे गैस बबल अब डायरेक्ट जा रहे हैं इस वाले conical flask में जिसमें लाइम वाटर था. ठीक है, now observe this change carefully. बेटा अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे कुछ ना वाइट कलर्ड क्लाउड सा बन रहा है. ये देखो, ये वाला आई डोंट नो इट इज विजिबल
इन दिस वीडियो और नॉट, बट येस इट इज फॉर्मिंग. कोई बात नहीं, लास्ट में आपको चेंज समझ में आएगा. ठीक है. स्टिल दिस गैस इज पासिंग डायरेक्टली टू दिस conical flask where lime water is there. Now let's observe the change. What happened here? What happened? Again it turned milky. Got it? So what we got to know? We got this change. Initial was this. हमने जब इनिशियल लिया था यहां से शुरू किया था, और जब गैस पास हो गई तो हमको ये मिला. ऑब्जर्व द चेंज. व्हाट इट शोज? इट शोज दैट विनेगर में जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने जब यहां पास किया किसमें, लाइम वाटर में, वो मिल्की टर्न हो गया. ठीक है. मिल्की टर्न क्यों हो गया लाइम वाटर? आई होप यू नो दैट. बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Am I clear? Understood? चलो रिएक्शन देखते हैं. So what was the observation? Observation is that lime water turns milky. Now this indicates the gas formed is carbon dioxide. ये जो लाइम वाटर मिल्की हुआ ये प्रूव करता है कि इनकी रिएक्शन, किनकी, विनेगर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई थी. ठीक है. अब रिएक्शन तो देखनी पड़ेगी, है ना. सो विनेगर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स CO2 प्लस सम अदर सब कंपाउंड. ठीक है. अब बेटा विनेगर का फॉर्मूला आपको सिलेबस में नहीं है तो लेट्स राइट डाउन विनेगर ओनली. लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया है ना, ये क्या है, NaHCO3. ठीक है. अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन देखी थी. कौन सी वाली देखी थी? लेट मी शो यू दिस वन. यहां मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी किसी हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. क्यों फॉर्मेशन होता है? क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई है. ठीक है. अब बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है ये वाली रिएक्शन में. कहां गया ये वाला? यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने कार्बोनेट लिया और उसमें एसिड डाला. विनेगर इज एन एसिड. सो वेन एवर यू एड सम एसिड इन द कार्बोनेट और यू हीट इट, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना कार्बोनेट में, वो सारी गायब हो जाती है, वो सारी रिलीज हो जाती है. Clear? So vinegar which is acid when reacts with any carbonate, यहाँ पे बेकिंग सोडा है जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या होगा, हमेशा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में मिलेगा आपको कुछ दूसरा कंपाउंड. और वो कंपाउंड क्या है, वो नीचे इसी बॉटल में रह गया, छोड़ दो उसको. सम अदर कंपाउंड इज देयर. लेकिन ये सम अदर कंपाउंड आपको रिएक्शन में लिखना पड़ेगा. अगर एग्जाम में ये पूरी रिएक्शन लिखते हो तो यहाँ यू हैव टू मेंशन सम अदर कंपाउंड. Am I clear? So carbon dioxide when adds it forms carbonate usually, और कार्बोनेट को अगर आप हीट कर दो या उसमें एसिड डाल दो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. Here. Am I clear? चलो आगे देखते हैं. On repeating the above activity using the baking soda and water, what do you observe? बेटा यही एक्टिविटी अगर आप वाटर के साथ करोगे, so basically if you will add baking soda in water, what you will observe? No change. You won't be able to see such kind of fizzing sound. जो बबल फॉर्मेशन हुआ था वो कुछ नहीं मिलता है. बेकिंग सोडा विल जस्ट डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है. सो नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, सो देन इट विल बी अ फिजिकल चेंज. Am I clear? चलो, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज केमिकल चेंजेस. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट सम अदर चेंजेस, सम मोर चेंजेस वेयर केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व. ठीक है. केमिकल चेंज और कहाँ देखा है बेटा हमने? इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत सारे देखे हैं, है ना. द फर्स्ट वन इज रस्टिंग. इस पे पूरी एक्टिविटी करवाई थी मैंने और उस पे शॉर्ट्स भी बना हुआ है. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट. ठीक है. रस्टिंग में क्या हुआ था? इन द रस्टिंग ऑफ आयरन अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट वाज फॉर्म्ड, है ना. और ये कैसे बना था? व्हेन आयरन सब्सटेंस वाज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर. बेसिकली एयर एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों चाहिए होते हैं. ठीक है. नाउ Rusting is also a chemical change because it involves the formation of a new substance that is iron oxide. वो जो रस्ट बना ब्राउन कलर का वो है क्या एक्चुअल में? वो है आयरन ऑक्साइड. ठीक है. रिएक्शन आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. आयरन सबसे पहले तो खुद आयरन का सब्सटेंस होना चाहिए, उसके साथ वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आयरन ऑक्साइड, दैट इज ब्राउन कलर सब्सटेंस. और क्या बोलते हैं इसको? रस्ट बोलते हैं. अंडरस्टूड. चलो, वन मोर केमिकल चेंज, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन. अगेन पूरी एक्टिविटी करवाई है मैंने, है ना. शॉर्ट्स भी है इस पे, देखा होगा आपने. कंबशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. जब भी कभी बर्निंग होती है इसका मतलब कंबशन होता है, तो वहां पे रिएक्शन किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है. अभी करेंगे पूरा. ठीक है.
So magnesium ribbon reacts with oxygen to produce magnesium oxide along with lots of heat gives dazzling white flame. यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट डैजलिंग फ्लेम मिलती है, उसको डायरेक्ट देखो तो थोड़ी देर में ना ऐसा डार्कनेस हो जाता है आंखों के आगे, है ना, समझाया था मैंने ये। चलो रिएक्शन क्या होगी, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। एंड नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंबशन, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंबशन इन डिटेल, ठीक है, बिकॉज कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। क्लियर? देखते हैं कंबशन। व्हाट इज कंबशन बेटा? अ केमिकल रिएक्शन। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन क्योंकि उससे बिल्कुल नया सब्सटेंस मिलता है आपको, ऐश मिलेगा, जो भी गैस फॉर्म होगी, कुछ भी नया तो पक्का फॉर्म होता है। सो अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट और लाइट, दैट इज कॉल्ड कंबशन। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जहां पे सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और आपको हीट और लाइट दे दे, दैट इज कॉल्ड कंबशन। Am I clear? चलो आगे देखते हैं। सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन, वो सब्सटेंस जो कंबशन, जिसमें कंबशन होता है, जो जल जाता है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्यूल। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूल। सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। ठीक है, वही है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो जलेगा उसी को तो कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एटसेट्रा, दीज ऑल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, अब बेटा इसको समझने के लिए लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। वाटर, वाटर में कभी आग लगती है क्या? नो, वाटर उल्टा आग को बुझा देते हैं। सो वाटर इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट, वाटर इज नॉट कंबस्टिबल। ठीक है, लेकिन वहीं पेपर ले लो आप, पेपर, पेट्रोल, केरोसिन, इनमें क्या होता है? तुरंत आग लग जाती फ्लेम्स के साथ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अंडरस्टूड? और इनको फ्यूल भी बोलते हैं। गॉट इट? चलो, तो कंबशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कंबशन कैसे होता है बेटा? कंबशन के लिए सबसे पहले तो आपको कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, कोई चीज चाहिए जिसको हम जला सकें। सो सबसे पहले क्या चाहिए? फ्यूल, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट क्या चाहिए? रिएक्शन, क्या डेफिनेशन में क्या है? सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है, सो वी नीड कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन एंड हीट। अब ये हीट वाला फैक्टर डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन वाली जो कंडीशन है उसको देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यू आर हैविंग वन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन? लेट्स फाइंड इट आउट। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? एक्टिविटी है 5.5, प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन 2 सेपरेट पेट्री डिश, दीज आर कॉल्ड पेट्री डिश। यहाँ पे आपने क्या रखा? कैंडल रखा जला के। कवर वन ऑफ दीज विद अ ग्लास टम्बलर एंड ऑब्जर्व। एक को जला रहने दिया नॉर्मल, और एक के ऊपर रख दिया ग्लास टम्बलर, तो क्या होगा? बहुत कॉमन है, पहले भी किया होगा, बुझ जाती है कैंडल, है ना? क्यों बुझ जाती है? वाई? बिकॉज दिस ग्लास टम्बलर इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्लास टम्बलर जैसे हमने रखा तो इस कैंडल को अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए कैंडल जो फ्लेम है वो बंद हो जाती है। अंडरस्टूड? दिस एक्टिविटी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन। एनी प्रॉब्लम? सिंपल है ये तो, है ना? अभी करके देखेंगे। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? The uncovered candle continues to burn. The first one which is uncovered, it will continue to burn, and whereas the covered candle stops burning after some time. ये covered वाली थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ठीक है? Now, what we can infer out of this? The candle covered by the glass tumbler does not have continuous supply of oxygen, and so the flame gets extinguished soon. जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई, थोड़ी देर में फ्लेम बंद। Now, this component of air that supports combustion is oxygen. ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है? एयर में जो ऑक्सीजन है दैट इज अ कंपोनेंट विच सपोर्ट्स कंबशन। Am I clear? नाउ बेटा अब इस एक्टिविटी में हमें कुछ और चीजें भी फाइंड आउट करनी है। ये एक्टिविटी तो आपने 4th 5th में भी करी थी ना, तो अभी 7th क्लास में दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हियर यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग मोर। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट मोर? इफ नॉट ऑक्सीजन देन विच गैस इज देयर इनसाइड द टम्बलर इन केस बी। बेटा ये जो केस बी है ना, इसमें जब हमने टम्बलर रखा, फ्लेम बंद हो गई, लेकिन फ्लेम बंद होने के बाद कुछ तो अंदर प्रोड्यूस हुआ, वो क्या था? हाउ वी कैन प्रूव दैट? सो अगेन एक्टिविटी, लेट्स फाइंड इट आउट। यहां पर क्या किया है? दिस इज द चाइना डिश विच आई हैव टेकन, इसको चाइना डिश बोलते हैं। यहां पर इसमें रखा है पूरा लाइम वाटर। क्या है ये? लाइम वाटर। ना ऑब्जर्व द कलर ऑफ लाइम वाटर। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा चाइना डिश जो है वो व्हाइट कलर का है, तो ज्यादा क्लियर आपको फिर पता नहीं पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, सो ऑब्जर्व केयरफुली। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है पानी अभी,
है ना, लाइम वाटर है ये, इसमें हमने रखा कैंडल, इसको बर्न कर दिया, ठीक है। सो लेट्स लिट इट अप, ओके। नाउ नॉर्मल कंडीशन है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो अभी भी कैंडल जल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल प्लेस द ग्लास टम्बलर ओवर इट, ग्लास रख लिया, बेसिकली ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या हुआ, धीरे 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 बंद, वाई, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कट ऑफ दिस ग्लास टम्बलर इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अब ये जो गैस अंदर प्रोड्यूस हुई बेटा, इसको थोड़ी देर मिक्स होने देते हैं इस वाटर में, ठीक है। अब मिक्स होने दिया, सो लेट्स ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। ये देखो, इसको हटाते हैं एंड लेट्स रिमूव द कैंडल एंड नाउ चेक आउट द कलर, इट इज अगेन मिल्की और क्लाउडी। ये मिल्की और क्लाउडी हो गया। ये देखो, ये आपका फर्स्ट केस था जहां पे बिल्कुल क्लियर वाटर था, और ये सेकंड केस है जहां पे पता भी नहीं पड़ रहा कि पानी है। चाइना डिश और इसका कलर बिल्कुल सेम लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये मिल्की और क्लाउडी हो गया, बिल्कुल व्हाइट, जैसा चाइना डिश है वैसा, ठीक है। नाउ लाइम वाटर अगेन टर्न्ड मिल्की। इसका मतलब क्या है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हुई वो भी देखना है। चलो, इनसाइड द टम्बलर कार्बन डाइऑक्साइड वाज फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। बेटा ग्लास टम्बलर के अंदर जो कैंडल था, कैंडल में कार्बन होता है, ठीक है। और जब हमने उसके ऊपर ग्लास टम्बलर रखा तो थोड़ी देर तो ऑक्सीजन थी ना अंदर, तो वो ऑक्सीजन और जो कार्बन था किसका, वैक्स का, वो रिएक्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई। Am I clear? Now, how we can confirm this is carbon dioxide? We can test the carbon dioxide gas by adding some small amount of lime water in the petri dish. Petri dish बोला है, यहाँ पे मैंने चाइना बोल में करके दिखाया है, ठीक है। So what we will observe? We will observe this lime water will turn milky, and thus it proves that the gas produced was carbon dioxide. Understood? Chalo, moving ahead, and now extend your knowledge with the help of these screenshot of your NCERT. The first one, science and society. If a person clothes catches fire, what is the best way to extinguish the fire? बेटा ऐसा कोई सिनेरियो अगर आप देखते हो जहाँ पे एकदम से आग लग गई है, तो आप कैसे उसको बुझा सकते हो? अभी जो हमने एक्टिविटी समझी उसके बेसिस पे आंसर करके बताना है। What you can do? Do something to cut off the supply of oxygen. ऐसा कुछ करो जिससे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बंद हो जाए। And what is the best way? Put some thick blanket or cloth over that burning thing. ठीक है, अगर कहीं पे आग लग जाती है उसके ऊपर ऐसा थिक ब्लैंकेट डाल दो। वाई? दैट थिक ब्लैंकेट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर दैट ए फायर इनसाइड, ठीक है। नाउ यू हैव टू नोटिस वन थिंग, यू डोंट हैव टू पुट सिंथेटिक ब्लैंकेट। बेटा सिंथेटिक ब्लैंकेट होते हैं वो यूजुअली मेल्ट हो जाते हैं हीट में आते ही, ठीक है। और अगर मेल्ट हो गए तो देन दे विल कॉज सिवियर बर्न, वो ज़्यादा इंजरी कॉज करेंगे, ठीक है। देखो, wrap a blanket or a cloth around the person. This cuts off the supply of air and the fire will be extinguished. Caution: synthetic blanket or cloth should never be used to put out the fire, as these can melt and stick to the skin, causing more severe burns. Am I clear? Very very important question बेटा, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट, नेचर्स वंडर। ये जो यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं क्या है, ये क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पता है आंसर? टेल मी राइट नाउ इन द कमेंट्स, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो फायर फ्लाइज बोलते हैं, ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, सो यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, है ना, ये लाइट आती है इनमें से, ठीक है। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज। इनके अंदर कुछ तो केमिकल चेंज हो रहा है तभी तो लाइट प्रोड्यूस हुई है ना, लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसा नहीं कि वहां पे गर्म हो जाता, बिल्कुल सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होती है। नाउ this type of light production without heat, सिर्फ लाइट प्रोड्यूस हुई, हीट नहीं हुई। सो दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। बायो इज बायोलॉजिकल, सो लिविंग बींग्स में हो रहा है, एंड बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको। Am I clear? Definition of bioluminescence: the type of chemical change where only light is produced without the production of heat in living organism, that is called bioluminescence. Am I clear? चलो moving ahead, and now next requirement for combustion. बेटा पहले तो फ्यूल चाहिए था, फ्यूल के बाद हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी। Now what else is required? Now this paper, बड़ा काम का ये पेपर है ना, शुरू से इसी एक्टिविटी कर रहे हैं। चलो, so this paper, this can undergo combustion. इसमें आग लग सकती है ना, लग सकती है,
Now this is the combustible substance, so this is the fuel, and right now in my surrounding there is oxygen also, but why it is not burning? तो ये combustion क्यों नहीं हो रहा है इसमें? फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या मिसिंग है बेटा? टेम्परेचर. हियर टेम्परेचर इज मिसिंग. इसको जैसे ही मैं फायर के में लगाऊंगी, देन इट विल कैच द फायर एंड इट विल अंडरगो कंबशन. सो हीट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अभी समझते हैं इसको डिटेल में आगे. देखो, इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनफ फॉर कंबशन? आई होप यू गॉट द आंसर. ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इनफ. ठीक है. Hold a piece of paper with a pair of tongs and bring a lightened matchstick to it. It will quickly catch fire. है ना? जैसे ही पेपर के पास हम मैच स्टिक लेके आएंगे तो वहां पे फायर हो जाएगा. मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आग लग सकती है, डेंजरस है. ठीक है. दिस मीन्स वी नीड फायर टू स्टार्ट बर्निंग. इसका मतलब एक पास तो 100% श्योर है कि भाई हमें फायर चाहिए बर्निंग करवाने के लिए, है ना? बट इज इट 100% ट्रू? सिर्फ फायर से ही क्या ये आग लग सकती है? नो. लेट्स ट्राई विथ सम एक्टिविटी. यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, फोकस ऑन सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर. ये पक्का आपने किया होगा ये एक्टिविटी, है ना? यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास. सन के पास ये पेपर लेके जाओ और सन का पूरा स्पॉट पेपर पर लो, बड़ा शार्प सा स्पॉट. इसको ज़्यादातर देख भी नहीं पाते हैं, ऐसे आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, इतना ब्राइट स्पॉट होता है ये, है ना? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? जितनी भी सन की हीट एनर्जी थी वो हमने सारी कंसंट्रेट करके एक पूरे स्पॉट पे लेके आ गए हम, इसलिए इतना ब्राइट दिख रहा है ना? सो वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द पेपर. एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व दिस आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद, ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली यहां पर आग लग जाए. यहां पर जैसे ही आपने मैच स्टिक लिया तुरंत आग लग जाती है. इट अंडरगो कंबशन इमीडिएटली. लेकिन यहां पर immediately combustion नहीं होता. It takes some time. It takes some time and then you see this combustion. Understood? So what it shows? It shows that only flame is not important. Heat is important. अब वो heat आप कैसे provide कर रहे हो, that depends. या तो आप flame से provide करवा लो, या तो sun energy से भी हो सकता है ना? So what we observe? The paper starts to emit smoke and then catches fire. पहले धीरे धीरे यहाँ से smoke produce होना शुरू होता है, उसके बाद फिर immediately ये fire catch कर लेता है. Am I clear? चलो आगे समझते हैं. So what we can analyze out of this? Sun rays focused on the paper heats it. Basically जो sun ray हम उस पर फोकस करवा रहे हैं, हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं पेपर को. ठीक है. The temperature of the paper increases with time. Immediately catches fire नहीं होती, थोड़ी देर में होती है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर वो फायर कैच करता है पेपर. ठीक है. After some time the paper becomes enough hot that it starts burning. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद जब वो प्रॉपर गर्म हो जाता है तब जाके वहां पर बर्निंग स्टार्ट होती है ना? ये हमने एनालाइज किया इस पूरी एक्टिविटी से. नाउ फॉर कंबशन द फ्यूल शुड गेट मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट कैन कैच फायर. बेटा ये पेपर में अभी क्यों फायर नहीं हो रही? कंडीशन, आपके पास फ्यूल है, आपके पास ऑक्सीजन है, लेकिन तब भी ये फायर क्यों नहीं कैच कर रहा? बिकॉज हियर द रूम टेम्परेचर इज नॉट इनफ फॉर इट्स कंबशन. इसको बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए. यूजुअली पेपर को ऑलमोस्ट 230-35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. यस, 230-35 डिग्री सेल्सियस उतना टेम्परेचर चाहिए होता है. तो उतना टेम्परेचर जब ये प्रोवाइड हो जाएगा इसको, किसी भी मीन से हो, भले कैंडल से आप करवाओ या सनरेज से करवाओ, जब उतना टेम्परेचर इसको मिल जाएगा उसके बाद इसमें फटाफट कंबशन स्टार्ट हो जाएगा. Am I clear? So एक बार दोबारा से पढ़ो. For combustion the fuel should get a minimum temperature at which it can catch fire. This temperature can be achieved with or without flame. इसको हम फ्लेम से भी दे सकते हैं वो टेम्परेचर, या फिर विदाउट फ्लेम भी दे सकते हैं, जो कि हमने देख लिया. Am I clear? Now what is this minimum temperature called? ये जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं? और क्या वो मिनिमम टेम्परेचर सबके लिए सेम होता है? हर सब्सटेंस के लिए, पेपर के लिए, केरोसिन के लिए, पेट्रोल के लिए, सबके लिए सेम होगा क्या? नो बेटा. दिस टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर. क्या बोलते हैं इसको? इग्निशन टेम्परेचर. क्या डेफिनेशन है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. डेफिनेशन सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द 100% वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूरे चांस आने के. ठीक है. Again read, the minimum temperature at which any substance can catch fire is called ignition temperature.
ठीक है। नाउ सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर, जिसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कंसेप्चुअल वाले। देखो, सोनर ऑब्जेक्ट विल मीट दिस इग्निशन टेम्परेचर फास्टर इट विल कैच फायर। जितनी जल्दी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दोगे, उतनी जल्दी उसमें आग लग जाएगी। पेपर जब फ्लेम के ऊपर रखा था तो तुरंत आग लग गई थी। वाई? बिकॉज फ्लेम वॉज हैविंग ऑलरेडी दैट हाई टेम्परेचर, सो इग्निशन टेम्परेचर फटाफट मिल गया। लेकिन अगर इसी को आप सन में रखोगे तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर को रीच करने में टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? सो सूनर ऑब्जेक्ट विल मीट दिस इग्निशन टेम्परेचर, फास्टर इट विल कैच फायर। अंडरस्टूड? दूसरा वाला, लोअर इज द इग्निशन टेम्परेचर मोर द सब्सटेंस विल बी कंबस्टिबल। बेटा किसी भी सब्सटेंस का लोअर टेम्परेचर होगा इग्निशन टेम्परेचर, तो उसमें आग जल्दी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर टू फ्यूल्स, वन इज हैविंग इग्निशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने रूम टेम्परेचर से धीरे धीरे हीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, तो पहले कौन सा टेम्परेचर मीट होगा, 250 या 300? ऑब्वियसली 250। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर 250 है उसमें पहले आग लग जाएगी, और जो 300 वाला है उसमें टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? सो लोअर इज द इग्निशन टेम्परेचर, 250 इज लोअर, सो लोअर इज द इग्निशन टेम्परेचर, मोर द सब्सटेंस विल बी कंबस्टिबल, उसमें जल्दी आग लगने के चांस होंगे। Am I clear? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सब्सटेंस विद इग्निशन टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस विल कैच फायर सूनर देन द सब्सटेंस विद इग्निशन टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस। Am I clear? Understood? चलो, now getting back to the essential requirement of combustion. Now what we can conclude? We can conclude that for combustion process there are three requirements, and what are these? The first one is the fuel, second one is the oxygen, and third one is the heat. Why heat? So that we can meet the ignition temperature. Am I clear? We can make it with this fire triangle. Important है, बनाना आना चाहिए। Understood? चलो, but now we have seen so many activities, है ना? कहीं पर हमने फिजिकल चेंज देखा, कहीं पर हमने केमिकल चेंज देखा। नाउ कैन यू सजेस्ट सम एक्टिविटी वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ में हो रहे हो? कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर एट द सेम प्रोसेस? yes, that is possible, and the perfect example is this burning of candle। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो रहे होते हैं। अब कैसे हो रहे होते हैं, कहाँ हो रहे होते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, ये देखो बेटा, व्हेन दिस कैंडल इज बर्निंग, अगर आपसे बोलो कैंडल में क्या जलता है, तो ज्यादातर बच्चे आंसर करेंगे मैम जो बीच का धागा है ना, जिसको विक बोलते हैं, वो जलता है ना। अब बेटा अगर लेट्स से ये विक यहाँ जल रही है, इस विक को आप निकाल लो, एक नॉर्मल विक ले लो जो कैंडल में डिप नहीं है ना, नॉर्मल ऐसे बाहर पड़ी हुई है कॉटन विक, उसको आप जला के देखो, वो इतनी देर जलता है क्या जितनी देर कैंडल जलेगी? ऑफ कोर्स नॉट, वो सो एकदम आग पकड़ के वो पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, इजंट इट? So here only wick is not burning, something else is also burning. That's why it is taking so much of time. Yes. So what is happening here? The wax of the candle melts. पहले हम wick burn करते हैं, no doubt. सबसे पहले burning wick की ही होती है, तो पहले wick burn होगा, wick burn होने से heat produce होगा, उस heat से this candle will melt, है ना? तो candle की melting होती है। Then what happens? The wax of the candle melts and is carried up to the wick and evaporates due to the heat of the flame. बेटा इस कैंडल जो ये मेल्ट हुई वही जाके इस विक तक ऊपर जाती है, सीपिन होके विक में ऊपर चली जाती है, और फिर उसमें से जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो बर्न होते हैं। सो विक के साथ साथ जो कैंडल वैक्स में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो बर्न होते हैं। ठीक है, देखो the vapor of the wax burns to produce the flame. So wick and the vapors of the flame, vapors of the this wax, both are burning, both are undergoing combustion. ठीक है, next, the melting of wax, its solidification and evaporation are physical changes. बेटे यहाँ पर जो heat से ये wax melt हो रही है और melt होके नीचे गिर के फिर solidify हो रही है, वो क्या है, वो कौन सा change है? वो physical change है ना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ state change हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज, है ना। सो कंबशन केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, सो द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, नाउ मूविंग अहेड एंड नो अ साइंटिस्ट। बेटा ये बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, इसकी स्टडी बहुत पहले से चल रही है। देखो, द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज लॉन्ग बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फेराडे। कौन है ये? माइकल फेराडे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आगे बहुत सुनोगे इनका नाम। देखो,
Now, in the 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of Candle. Chemical History of Candle, कैंडल की पे बहुत सारी स्टडी करी और उस पर एक लेक्चर दिया था इन्होंने. Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific study. है ना, इसके पीछे बहुत scientific facts थे. Through it, he discussed difference between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion. ठीक है, इसके बेस में इन्होंने डिफरेंशिएट किया था, है ना. सो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस रिनाउंड साइंटिस्ट. अंडरस्टूड. चलो ना मूविंग अहेड. एंड नाउ, आर दीज चेंजेस परमानेंट? बेटा हमने इतने सारे जो एक्टिविटीज़ और अभी चेंजेस देखे, वो सारे के सारे चेंज क्या परमानेंट होते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट, है ना. और परमानेंट चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. जो चेंज परमानेंट होगा उसको इसका मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल होगा. जो चेंज टेम्पररी होगा इसका मतलब वो वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट आउट. बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये वही वाला टेबल जो हमने इनिशियली देखा था. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या चेंज हुआ था? स्टेट चेंज हुआ था. तो स्टेट चेंज इज अ फिजिकल चेंज, है ना. तो यहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ. अब अगर आइस मेल्ट होकर लिक्विड में टर्न हो गई तो दोबारा से फ्रीज कर लो तो फिर से आइस बन जाएगा, है ना. सो दिस इज रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज है. चॉपिंग वेजिटेबल पोटैटो एग्जाम्पल दिया था. पोटैटो राउंड होता है, चॉप कर दिया, साइज चेंज हो गया, लेकिन उस साइज चेंज को दोबारा जोड़ के आप पोटैटो ले लोगे क्या? नहीं. तो साइज चेंज हुआ तो इट्स अ फिजिकल चेंज, लेकिन वो दोबारा से पोटैटो नहीं मिलेगा आपको ओरिजिनल साइज में, है ना. सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंज. एम आई क्लियर? नाउ बॉइलिंग ऑफ वाटर. सो वाटर लिक्विड टू गैसियस स्टेट. सो स्टेट चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज है, और फिर से आप उसको कंडेंस कर लो तो फिर आपको वाटर मिल जाएगा, तो रिवर्सिबल चेंज है. मेकिंग पॉपकॉर्न. बेटा जो कॉर्न्स होते हैं, एक बार वो पॉपकॉर्न में टर्न हो गए तो नया सब्सटेंस मिल गया ना आपको, जिसका टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर हो गया आपका केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस आपको मिल गया और वापस आपको कॉर्न नहीं मिलने वाले उससे. तो दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंज. ठीक है. बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर. बीट रूट को अगर पानी में डालोगे तो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाएगा, तो कलर चेंज विच इज मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज. और अगर आप पानी को दोबारा से बॉईल कर लो तो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर से आपको वही एक्सट्रैक्ट मिल सकता है. यस, सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. सो हियर इट इज रिवर्सिबल. नाउ बर्निंग ऑफ वुड को बर्न कर लो तो बिल्कुल नया ऐश, नया सब्सटेंस मिल गया आपको, तो ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल चेंज. और ये इरिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल चेंज है, वापस आपको वुड तो मिलना नहीं है ना, तो नॉन रिवर्सिबल. ड्राइंग वेट क्लॉथ्स. बेटा कपड़े गीले हैं, सूख गए, दोबारा भिगा लो तो फिर से आपको रिवर्सिबल हो जाएगा. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज एंड रिवर्सिबल चेंज. ठीक है. रोलिंग डो को रोल करा तो शेप चेंज हुआ, फिजिकल चेंज है, और उसको दोबारा से डो बना लो, दोबारा से ऐसे बाइंड कर लो तो रिवर्सिबल. मेकिंग स्प्राउट्स. बेटा अगर पल्सेस से एक बार स्प्राउट हो गया, यानी प्लांट का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो दोबारा सीड तो वैसे मिलेंगे नहीं आपको ओरिजिनल स्टेट में, until it is grow into a new flower something. चलो, तो यहाँ पर इट इज अ केमिकल चेंज एंड नॉन रिवर्सिबल. मेकिंग बॉल्स ऑफ डो. अगेन डो से बॉल बनाओगे, शेप चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज एंड इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, दोबारा से डो बना लो. नेक्स्ट कुकिंग वेजिटेबल कुक हो गई तो केमिकल चेंज हो गया, है ना, अंदर के सारा केमिकल उसका कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया है, तो केमिकल चेंज एंड इट इज अ नॉन रिवर्सिबल चेंज. पकी हुई सब्जी से दोबारा कच्ची थोड़ी मिलेगी आपको, नॉन रिवर्सिबल. नाउ नोटिस केयरफुली. बेटा केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जितने भी केमिकल चेंज हैं सारे के सारे नॉन रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वहां पर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है जो कि फिजिकली सिर्फ हम ऐसे शेप और कुछ साइज चेंज करने से दोबारा नहीं मिलेगा. सो नॉन रिवर्सिबल. नाउ नोटिस द फिजिकल चेंज. बेटा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, हेयर रिवर्सिबल, बट फिजिकल चेंज हेयर नॉन रिवर्सिबल. बेटा फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, बट देयर आर सम कंडीशन जहां पर वो नॉन रिवर्सिबल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, वो प्रिकिंग ऑफ इन्फ्लेटेड बलून, ग्राइंडिंग, क्रशिंग द चॉक, दीज आर और नॉन रिवर्सिबल फिजिकल चेंज. Am I clear? Understood? चलो मूविंग अहेड. नाउ आर ऑल दीज चेंजेस डिजायरेबल? बेटा द चेंजेस दैट वी आर स्टडिंग सिंस बिगिनिंग, जितने भी चेंज अपने आसपास देखते हैं, ये सारे के सारे डिजायरेबल होते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट. देयर आर सम चेंजेस विच वी वांट, बट देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस विच वी डोंट वांट, है ना. सो वी कैन कैटेगराइज ऑल द चेंजेस इनटू टू कैटेगरीज, डिजायरेबल चेंज एंड नॉट डिजायरेबल चेंज. डिजायरेबल चेंज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क.
we want curd, so curdling of milk is desirable. Ripening of fruit, cooking of food, digestion of food, these are the examples of some desirable changes. इसके अलावा आप बहुत कुछ और बता सकते हो, है ना. Coming to non desirable, spoiling of food, हमें नहीं चाहिए कि खाना खराब हो. Rusting, aging, natural calamities, non desirable. Understood? Now beta, there are some situation where same change is desirable in one situation but in another situation is not desirable. ठीक है. For example, देखो यहाँ पर a change that is undesirable in some situation may be desirable in another situation और vice versa. For example, बेटा जब खाना हमारे घर पे होता है तो हमें नहीं चाहिए कि वो खराब हो जाए. We don't want the spoiling of food when it is at home, but when the same food is undergoing decomposition, then we want it to spoil. अगर spoil नहीं होगा तो decomposition की प्रोसेस तो होगी ही नहीं, है ना. So same change, same spoiling of food is happening at both the place, but one place it is not desirable according to our need and another place it is desirable. Clear? और देखो combustion is desirable. बेटा हमें चाहिए कि combustion हो, उसी से हमारा खाना बनता है ना, हमें heat मिलती है. So combustion is desirable, but uncontrolled combustion is not desirable. Understood? तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देने आने चाहिए. Am I clear? चलो आगे चलते हैं. And now looking for some man-made changes that are impacting our environment. बेटा man has brought so many changes in the surrounding due to new development of technologies, है ना, which are impacting our environment. So let's talk about them. The first one, the increased consumption of fuels in the cars, trains, aeroplanes, etc. It is increasing the amount of carbon dioxide. So basically air pollution is happening, है ना. Increased industrial waste will cause water pollution, soil pollution. Or drying of paint on walls, doors, furniture, etc. releases many substances through evaporation, causing atmospheric pollution. but इसके अलावा जो हम रेफ्रिजरेटर, AC ये सब यूज करते हैं, अगेन harmful gas is produced, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं उसको. Depletion of ozone layer, it is responsible for again change. ठीक है. So man made change which is impacting our environment. Example पता होने चाहिए. ठीक है. Now other than man made changes, are there some natural changes also? Of course, नेचर में कितने सारे चेंज होते हैं, है ना. Some of them we have to focus on, and here we have to talk about the weathering of rocks. बेटा if you observe this picture carefully, ये जो रॉक है इसके बेस में ये बहुत सारा डिपोजिशन दिख रहा है, मड का, सॉइल का, छोटे छोटे पेबल्स का. ये कहाँ से आया? ऐसे कोई ट्रक लेके गया और यहाँ खाली करके आया क्या? Of course not. ये कहाँ से आया? It is the weathering of the rocks. रॉक्स के ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुआ होगा ये बड़ा वाला रॉक और ये आपको मिला है ना. यहाँ पे देखो दिस इज अ ब्लैक कलर्ड पूरा रॉक, लेकिन इसके बेस में ये क्या दिख रहा है? ये पूरा रेड कलर डिपोजिशन. ये इनिशियली शुरू से ऐसे ही होगा? नो, देयर इज सम चेंज, है ना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो वेदरिंग ऑफ रॉक, हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन? दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं. अब ये सेडिमेंट्स कहाँ से आए? दैट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड. लेट्स टॉक अबाउट दीज. तो वेदरिंग पहले डेफिनेशन समझ लेते बेटा. वेदरिंग इज ऑफ रॉक इज अ नेचुरल प्रोसेस. पहली बात तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना. वेदरिंग ऑफ रॉक इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच रॉक्स इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द कंटिन्यूअस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकरिंग इन द रॉक. बेटा जो बड़ी वाली रॉक होती है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होती हैं ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल चेंजेस. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल चेंज. व्हाट इज द फिजिकल चेंज दैट इज हैपनिंग? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉलर पीस. जो बड़ी रॉक थी वो छोटे छोटे पीस में टूट गई, है ना. सो व्हाट हैपेंड हियर? शेप चेंज, साइज चेंज. So physical properties basically changing. So this is the physical change. And how this change is happening? How this physical change is taking place? This is taking place by continuous change in temperature. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात को बहुत ज़्यादा ठंडी. So continuous varying temperature. This leads to the breaking of the rock. Second, growing roots of the tree causing cracks. बेटा अगर वहाँ पे कोई छोटे ट्री ग्रो हो गए तो उनके रूट्स कहाँ जाएंगी? रॉक के अंदर. अगर रॉक के अंदर रूट्स गई तो वहाँ पे क्रैक प्रोड्यूस होगा. यस. सो अगेन वेदरिंग. फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स. बेटा अगर वहाँ पे बारिश हुई, वाटर उसमें चला गया, उसके बाद फ्रीज हो गया टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से, तो अगर फ्रीज हो गया तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. आइस इज हार्ड सो दैट क्रैक विल ग्रो फर्दर. और बड़ा हो जाएगा क्रैक वहाँ पर, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय दिस फिजिकल चेंज मीन्स ब्रेकिंग ऑफ लार्जर रॉक इनटू स्मॉलर टेक प्लेस. Am I clear? लेकिन इसके अलावा some chemical change also take place. And what are those? Water reacts with rocks and causes chemical changes in their composition. बेटा केमिकल चेंज का जब मेन कल्प्रिट है वो वाटर ही है ना. वाटर एंड ऑक्सीजन. देखो
सो अगेन लेट्स ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स। बेटा ये वाली पिक्चर पे ध्यान दो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लैक कलर्ड आपका रॉक है ना, लेकिन इसके बेस में ये पूरा रेड पूरा आपको डिपोजिशन दिख रहा है। ऐसा वाला रेड या ब्राउनिश डिपोजिशन कहीं पहले देखा हुआ है? ऑफ कोर्स देखा है। कहाँ देखा है? रस्टिंग। यस, दिस इज रस्टिंग। व्हाई द रस्टिंग हियर? बिकॉज हियर ओरिजिनली द ब्लैक कलर्ड रॉक which is also known as basalt, which contains iron, has chemically changed to produce the red colored layer. बेटा ये ब्लैक कलर्ड रॉक को बेसल्ट बोलते हैं और इसमें क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। और यही आयरन when it comes in contact with moisture, with oxygen in the air, undergo rusting. और रस्टिंग जब हो गई तो ब्राउन कलर डिपोजिशन ऑफ what is rust? आयरन ऑक्साइड। ये पूरा क्या है? आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। The red colored is the result of iron oxide, that is rust produced when the rock surface was exposed for a long time to water and air containing water vapor. Am I clear? So this is one of the natural change. Clear? One more natural change we have to focus on, that is soil erosion. Last topic of the chapter. ठीक है, चलो। Now what is soil erosion बेटा? पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। The removal of the top layer, fertile layer, है ना? Now question, have you noticed the fine sand collecting on river bed or in lakes? बेटा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया मैंने। वहाँ मैंने बताया था आपको दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, है ना। और जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे पूरा एल्यूवियल सॉइल डिपोजिशन है। कहाँ से आया ये सॉइल? ये कहाँ से आया बेटा? ये जब रिवर रॉक से ट्रैवल करते हुए आई, साथ में सॉइल इरोजन हुआ। सो सॉइल इरोजन में जो टॉप लेयर थी सॉइल की वो सारी की सारी इरोड हुई, ठीक है। देखो, दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक, पेबल्स, सॉइल, सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड moved from one location to another location by natural forces like wind and flowing water. बेटा ये जो पेबल्स, सॉइल, सेडिमेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हाउ? बाय सम नेचुरल फोर्सेस लाइक रिवर और विंड। इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा सैंड एक जगह था, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? ऑफ कोर्स इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज हुई है तो सैंड ना, इनिशियल भी सैंड था, बाद में भी सैंड है, पहले भी मड था, लास्ट में भी मड है, ठीक है। देखो, a natural process in which the top soil of the land is carried away by physical sources or forces like wind or water is known as soil erosion. A natural process in which top soil of land is carried away by wind or water. This is called soil erosion. Understood? आगे देखो, when the speed of water or wind is decreased, अगर स्पीड कम हो गई तो क्या होगा? यही सारा जो ये कैरी कर रहे हैं सॉइल सेडिमेंटेशन वो सारा डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। डिक्रीज्ड सच एज इन द केस ऑफ ओशन और लेक, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द इरोजन settles down at the bottom. These sediments harden over the period of time and then they only turn into the rocks. Am I clear? Understood? Chalo, with this we are done with this chapter. I hope you were able to comprehend each and every concept with these all activities and experiment we have performed and with the simplest explanation. But still, if you are facing any difficulty or any doubt, you can comment. I will revert back there. Now, we'll meet soon for the NCERT solutions of this chapter. Till then, take care and bye-bye.